يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. محترم بزرگوں، قوم و ملت کے لائق و نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین، شفیع المؤمنین، سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات، آج میں جس چیز پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ معاشرے کی تین برائیاں ہیں۔ تین برائیوں کا میں ذکر کروں گا۔ ان تین برائیوں کی وجہ سے معاشرے میں اور بھی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انہی تین برائیوں کی وجہ سے آج جو ہماری نا اتفاقی ہے، بھائی چارہ ختم ہو چکا ہے، یہ اسی تین برائیوں کی وجہ سے۔ اور تین برائی کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں اس کا بیان کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ یہ تین برائیاں ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد ہوتا ہے، معاشرے میں اختلاف ہوتا ہے۔ پہلی برائی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم اپنے بھائیوں کے بارے میں زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، زیادہ برے گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض برے گمان انسان کو گناہگار بنا دیتے ہیں، بعض برے گمان انسان کو گناہ کبیرہ کا مرتکب کر دیتے ہیں۔ یہ برا گمان کیا ہے؟ مان لیجیے ہماری اور آپ کی نہیں پٹتی ہے، ہماری اور آپ کی نہیں جمتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہماری اور آپ کی چپکلی سے 36 کا آنکڑا چل رہا ہے تو ہمارا ایک کام بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ ہم مدرسے سے آ رہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، آپ کی نظر پڑی دیکھو کتنا بڑا ملا بنا پھر رہا ہے، آپ یہی کہیں گے نا؟ میں وضو خانے پر بیٹھ گیا وضو بنانے کے لیے، آپ کی نظر پڑی دیکھو 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو۔ یعنی اگر بدگمانی انسان کے دماغ میں آ جاتی ہے تو اس کا اچھا کام نیک کام بھی اس کو برا لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے
بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. ایمان والو تم اپنے بھائیوں کے بارے میں زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو. ضروری نہیں جو آپ سوچ رہے ہو سچ ہو، ضروری نہیں آپ نے ہمارے بارے میں جو غلط فہمی اپنے دل میں پال لیے وہ سچ ہو. امام اوزاعی ایک بہت بڑے امام گزرے، ان کا واقعہ ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر آئے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. صبح ہو گئی، محلے کی کوئی عورت آتے دروازے کو دستک دیتی ہے. امام صاحب جاتے دروازہ کھولتے تو کیا دیکھتے؟ محلے کی کوئی عورت آئی ہے. وہ عورت کہتے امام صاحب میں آپ کی بیوی سے ملنا چاہتی ہوں. امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ. امام صاحب جس جگہ پر جس چٹائی پر بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے تھے وہاں سے اٹھ گئے قرآن لے کر کے اور دوسرے روم میں چلے گئے، اپنے کسی دوسرے کمرے میں چلے گئے اور اپنی بیوی کو کہا بیوی دیکھو پڑوس سے محلے سے کوئی عورت تم سے ملنے کے لیے آئی ہے، تم اسی چٹائی پر بیٹھ کر کے باتیں کر لو. اسی چٹائی پر جیسے ہی وہ عورت بیٹھتی ہے، محلے کی عورت جو ملنے کے لیے آئی تھی امام اوزاعی کی بیوی سے، جیسے ہی اس چٹائی پر بیٹھتی ہے اس کا شلوار بھی گیلا ہو جاتا. چٹائی گیلی تھی، بھیگی ہوئی تھی چٹائی. وہ عورت جیسی اس چٹائی پر بیٹھتی ہے اس کا شلوار بھی گیلا ہو گیا. وہ فوراً کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کی نظر امام اوزاعی کے آنگن میں پڑتی ہے جو امام اوزاعی کا چھوٹا سا بچہ آنگن میں کھیل رہا تھا. وہ سمجھتی ہے کہ اسی چٹائی پر امام اوزاعی کا بچہ پیشاب کر کے گیا ہے. وہ کہتی ہے ارے بہن تمہیں مہمانوں کی عزت کرنا نہیں آتی؟ میں نماز پڑھتی ہوں، قرآن کی تلاوت کرتی ہوں اور تم نے اپنے بچے کے پیشاب پر مجھے بٹھا دیا. تمہارے بچے اس پر پیشاب کر کے بھی ادھر کھیل رہا ہے. امام اوزاعی کی بیوی کہتے میری بہن تم بے فکر ہو کر کے نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، یہ پیشاب نہیں ہے. اچھا پیشاب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پانی ہے کیا؟ امام اوزاعی کی بیوی کہتے ہیں پانی بھی نہیں ہے. اب اس کا وہ اور کنفیوز ہو گئی کہ تم کہہ رہی ہو پیشاب بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے تو پھر ہے کیا چیز چٹائی پر جو گرا ہوا میرے شلوار کو گیلا کر دیا؟ ہے کیا چیز؟ ضد کرنے لگی کہ بتاؤ میرا کنفیوژن دور کرو، یہ پیشاب نہیں پانی نہیں تو کیا چیز ہے؟ امام اوزاعی کی بیوی کہتے میری بہن میں تمہیں بتانا تو نہیں چاہ رہی تھی لیکن تم ضد کرتی ہو تو میں تمہیں بتا ہی دیتی ہوں. جسے تم پیشاب سمجھتی ہو وہ در حقیقت پیشاب نہیں ہے، یہ امام اوزاعی کے آنکھوں سے گرنے والے آنسو ہے. امام صاحب صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں جاتے اور نماز پڑھا کر کے جب گھر آتے تو اسی چٹائی پر روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے اور جب قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں سورج تھوڑا سا بلند ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر کے اپنے رب سے دعا کرتے استغفار کرتے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور اس دوران اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے گرنے والے آنسو سے روزانہ یہ چٹائی گیلی ہو جاتی ہے. تم اسی امام اوزاعی کے آنسو پر تم بیٹھ گئی ہو جسے تم پیشاب سمجھ رہی ہو. یہ در حقیقت پیشاب نہیں ہے نہ پانی ہے، یہ امام اوزاعی کے آنکھوں سے اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو ہے جس پر تم بیٹھ گئی. دیکھ رہے ہیں بدگمانی کہاں پہنچا دیا. بدگمانی پیشاب اللہ کے خوف سے گرنے والے آنسو کو بدگمانی پیشاب مانگنے پر مجبور کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو. ضروری نہیں جو آپ سوچ رہے ہو سچ ہو، ضروری نہیں جو آپ سوچ رہے ہو سچ ہو. ایک حکیم صاحب تھے اور ایک ڈاکٹر صاحب تھے، دونوں آپس میں بات چیت کر رہے تھے. ایک آدمی ادھر سے لنگڑاتا ہوا آ رہا تھا، اس کے پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ اسے چوٹ لگی ہوئی ہے. لنگڑاتا ہوا آ رہا تھا. ڈاکٹر بھی تجربے کار، حکیم بھی تجربے کار. ڈاکٹر کیا کہتا ہے حکیم صاحب جو لنگڑاتا ہوا شخص آ رہا ہے میرا تجربہ کہتا ہے کہ اس کے پیروں میں موچ آئی ہے. حکیم صاحب کہتے نہیں، اس کی چال بتلا رہی ہے کہ اس کے کمر کی ہڈی میں ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے. یہ چال ریڑھ کی ہڈی کے درد والوں کا ہے. دونوں بحث کر رہے ہیں. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پیر میں درد ہے، حکیم صاحب کہہ رہے ہیں ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے. اتنے میں وہ آدمی خود قریب آ گیا اور پوچھ لیتا ڈاکٹر صاحب کیوں آپس میں بحث کر رہے ہو، کیوں جھگڑے کر رہے ہو؟ ڈاکٹر نے کہا اس لیے بحث کر رہا ہوں کیونکہ تمہارے پیروں میں موچ آئی ہے. حکیم صاحب کہہ رہے نہیں، تمہاری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، اس میں درد ہے، آخر تم ہی بتاؤ تم کیوں لگا کر کے چل رہے تھے؟
उसने कहा डॉक्टर साहब ना मेरे पैरों में मोच है और ना मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, मेरी तो चप्पल टूट गई थी इसलिए मैं घिसक घिसक के चल रहा था। तो देख रहे बदगुमानी, जरूरी नहीं जो आप सोच रहे हैं वो सच हो, जरूरी नहीं। बदगुमानी कहाँ इंसान को पहुंचा देती है। हमारी और आपकी आपस में नहीं जमती है। मैं मदरसे से आ रहा हूँ मस्जिद में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हुए आ रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि मौलाना की मुझसे नहीं जमती है। आपकी नजर पड़ी, मेरे होठ हिल रहे थे, आप समझ रहे कि लगता है मुझे गाली दे रहा मुझे। बदगुमानी आपको गाली मनवाने पर मजबूर कर देती है और फिर मुआशरे में इख्तिलाफ हो जाता है, मुआशरे से भाईचारा खत्म हो जाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पर रोकथाम लगाई है और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न, ईमान वालों अपने भाइयों के बारे में बहुत ज्यादा बदगुमानी करने से बचो, क्योंकि बात बदगुमानियां इंसान को गुनाह कबीरा का मुर्तकिब कर देती है, गुनहगार बना देती है। तो मुआशरे में अगर भाईचारा कायम रखना है, मुआशरे में अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रखना है, तो हमें अपने भाइयों के बारे में बदगुमानी करने से परहेज करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो मुआशरे को खराब करती है, दूसरी चीज जो मुआशरे से भाईचारे को खत्म करती है, क्या है? वला तजस्ससू, एक दूसरे की जासूसी ना करो। कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां बैठ रहा है, बैठ करके किसको देख रहा है। आपको कोई हक नहीं है किसी की जासूसी करने की, आपको कोई हक ही नहीं है जासूसी करने की। और कितना के लोगों, अभी मैं मिंबर से बयान कर दूं तो कहोगे इस औरत को तो कुछ बताने के लायक ही नहीं है, ये तो मिंबर से ही बोल देता है। कितने लोगों ने कहा अरे जो आपसे पहले मौलवी थे ना वो ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे थे। मैं कहता हूं उनके अंदर लाख बुराइयां थी, लाख बुराइयां थी। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन बाद लोगों ने यहां तक भी कहा कि वो 2-2 बजे रात को नहाते थे। नौजुबिल्ला, ये रात में 2-2 बजे जासूसी करने वाला शख्स कौन था भाई? मौलाना रात के 2 बजे नहाते थे, 2 बजे रात को कौन जासूसी करता था भाई? जासूसी करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है। अभी मौलवी की नजर किसी के घर पे 2 बजे रात में पड़ जाए और किसी से कह दे कि फला आदमी को ऐसा करते हुए देखा था, फिर तो मौलवी को गुरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा यहां से। और मौलवी की रात में 2-2 बजे जासूसी करने वाले कितना के लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है जासूसी करने से। हजरत उमर फारूक जासूसी नहीं करते थे, जासूसी नहीं करते थे, वो अमीर थे, लोगों के खलीफा थे। वो रात में गश्त करते थे कि देखे कौन शख्स परेशान हाल है, कौन भूखा है, कौन बीमार है, उसका इलाज किया जाए, कौन भूखा उसके लिए खाने का इंतजाम किया जाए। वो रात में गश्त करते थे, घूमते थे। एक रात को घूमते घूमते एक गली से गुजरे तो गाने की आवाज आ रही थी, गाने की आवाज आ रही थी। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक उसके दीवार पर अपना कान लगा दिए, आपको अपना कान उसकी दीवार पर लगा दी तो पता चला हाँ इसी घर से गाने की आवाज आ रही है, इसी घर से। दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है उसके घर की। हजरत उमर फारूक उसकी दीवार पर चढ़ जाते, उसकी दीवार पर चढ़ करके उसके अंदर झांकते तो क्या देखते हैं? एक बुढ़ा आदमी है, एक बूढ़ा आदमी है जो शराब की नशे में धुत है, शराब की बोतल लिए हुए है और शराब पी रहा है, मस्त है। और उसके बगल में एक रक्कासा, एक डांसर उसके बगल में नाच रही है, यानी शराब भी है और शराब भी है उसके साथ। हजरत में फारूक लंबे चौड़े थे ही, उसकी दीवार पर जब चढ़ करके देखा तो क्या देखते हैं? ये माजरा घर के अंदर चल रहा है। हजरत उमर फारूक ने सोचा अगर दरवाजे को खटखटा के अंदर जाऊंगा तो फिर तो इनकार कर देगा कि मैं नहीं गाना गा रहा था, इसलिए रगे हाथ पकड़ना था। तो उमर फारूक उसके घर के अंदर जंप लगा दी, उसके घर के अंदर कूद गए, उसी दीवार के जरिए से उसके घर में कूद गए। और वो जैसे उमर फारूक को देखा उसका नशा ही उतर गया, उसका नशा ही उतर गया। उमर फारूक को देख करके जिस गली से गुजरते थे शैतान हवा खारिज करता हुआ भागता था। तो शराब का नशा क्या चीज है? जब वो बुढ़ा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक को देखता तो उसका नशा ही उतर गया और डर जाता है। अब तो गया, रक्कासा भी, बातल में, शराब में, सारी चीज रगे हाथ पकड़ा गया, अब तो पिटाई होगी मेरी। अमीरुल मोमिनीन ने उसको पकड़ा और कहा बुड्ढे, अल्लाह अल्लाह करने की तेरी उम्र है, तू इस उम्र में डांस करा रहा है और शराब पी रहा है, तुझे पता भी है शराब पीने की क्या सजा है? कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे मालूम है। क्या सजा है? कहा 40 कोड़े, शराबियों को 40 कोड़े मारे जाते हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा तुझे मारू कहा, तेरे बदन में तो गोश्त है ही नहीं, हड्डी हड्डी से है।
तो एक कोड़ा भी खाने की ताकत नहीं रखता, 40 कोड़े तो कैसे खाएगा, चल मेरे दरबार में। वो बुढ़ा नसीहत करता है उमर फारूक को। वो बुढ़ा शराब की नशे में हजरत उमर फारूक को हदीस सुनाता है, नौजवानों तुम मोबाइल के नशे में शरीयत भूल जाते हो, मोबाइल के नशे में इस्लाम भूल जाते हो। तुम्हें मोबाइल में सिर्फ आता है तो फेसबुक चलाना आता है, फेसबुक में फर्जी आईडी बनाना आता है, तुम लड़के हो लड़की के नाम पर आईडी बनाना तुम्हें आता है, मोबाइल में सारे सिस्टम सारे सेटिंग तुम्हें मालूम है, लेकिन शरीयत की कोई चीज नहीं मालूम। मेरे भाइयों वो शराब के नशे में है, शराब के नशे में है और उमर फारूक को नसीहत कर रहा है, उमर फारूक को हदीस सुना रहा है और कहता नहीं मुझे सजा बाद में देना, पहले अपने लिए कोई सजा बनाओ। तो आपने एक साथ में कई कई गलतियां की है। उमर फारूक ने कहा मैंने गलती की है? कहा क्या आप गलती नहीं कर सकते, आप फरिश्ते हो क्या? कहा नहीं, पहले मेरी गलती बता, मैंने क्या गलती की है। अब वो बुढ़ा हदीस सुनाता है और कहता मेरे मोमिन तुम्हें नहीं मालूम, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है जब किसी के घर के दरवाजे बंद हो, खिड़कियां बंद हो, तो तुम उसके अंदर के हालात मालूम करने की कोशिश ना करो। तुमने हमारे अंदर के हालात मालूम किए कि नहीं, ये गलती की कि नहीं? उमर फारूक ने कहा ये तो गलती मैंने की है। वो कहता है कि अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि जब तुम्हारे घर की खिड़कियां बंद हो, तुम्हारे घर के दरवाजे बंद हो, और अगर कोई तुम्हारे घर की जासूसी करे, तुम्हारे घर में झांक करके तुम्हारे अंदरूनी खाने की हालात मालूम करे, तो तुम बाहर निकलो और उसकी दोनों आंखें फोड़ दो। क्या ये सही है कि नहीं है? वो कहता है हाँ मेरे मोमिन ये भी सही। वो कहता है मेरे मोमिन कहते हैं हाँ बाबा ये भी सही है। वो कहता है एक और हदीस सुनाता है, कहता है अमीरुल मोमिनीन क्या अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि जब तुम किसी के घर में दाखिल हुआ करो, जब भी तुम किसी के घर में जाओ तो पहले उसके घर वालों से इजाजत ले लो, दरवाजे को दस्तक दो, उससे इजाजत लो, उसके बाद उसके घर में जाओ। क्या तुमने मुझसे इजाजत ली? कहा नहीं। क्या ये तुमने गलत काम किया कि नहीं? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक इस बुढ़े से गलती इकरार करते जा रहे हैं और कहते हैं हाँ ये भी मैंने गुनाह का काम किया। फिर वो बुढ़ा कहता है अमीरुल मोमिनीन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम किसी के घर में दाखिल हुआ करो, जब तुम किसी के घर में जाओ तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह यानी सलाम करके उसके घर में जाया करो। क्या तुमने सलाम किया? क्या नहीं, ये भी गलती। अमीरुल मोमिनीन तुम तो चोरों की तरह मेरे घर में कूद करके आए हो, ये गलती नहीं है? कहा हाँ गलती है। कहा उस बुड्ढे ने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे सजा बाद में देना, पहले अपनी सलाह कर दो। हजरत उमर फारूक उस बुड्ढे को छोड़ देते हैं और अपने घर चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। 4 साल गुजर गए, 4 साल वो बुड्ढा और कमजोर हो गया और कमजोर हो गया, लाठी के सहारे चलने लगा, अब वो कमाने के लायक ना रहा। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक के दरबार में जाता है, जब तुम्हें कमाने के लायक ना रहा, चले बैतुल माल से मैं भी अपना वजीफा जारी करवा लेता हूँ। जैसे ही अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक के दरबार में घुसता है, भीड़ लगी हुई है, लाइन में वो भी लग जाता है। हजरत उमर फारूक की नजर जब उस बुड्ढे पर पड़ती है, समझ जाते कि 4 साल पहले मैंने इस बुड्ढे को शराब पीते हुए पकड़ा था। समझ जाते, बुलाते या शेखना, ओ मेरे शेख, ओ बाबा तुम इधर आ जाओ। उसको लाइन से बुला लिया, अपने पास बुला लिया और अपने कमरे में लेकर गए। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक उस बुड्ढे को अपने कमरे में ले गए। बुड्ढा तो डरने लगा कि 4 साल पहले मैंने जो शराब पिया था, अमीरुल मोमिनीन ने मुझे सजा नहीं देते, लगता है आज पिटाई होगी, आज 40 कोड़े पड़ेंगे, आज तो 40 कोड़े पड़ के रहेंगे। वो डरने लगा। उसको उमर फारूक अपने कमरे में लेकर के जाते, अपने घर में लेकर के जाते, उस बुड्ढे को नाश्ता कराया, खिलाया पिलाया और कहा कहो बाबा कैसे आना हुआ? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन अब मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, अब मैं कमाने के लायक ना रहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी वजीफा बैतुल माल से जारी कर दिया जाए। उमर फारूक ने अपने कैशियर को हुक्म दिया कि ठीक है इसका वजीफा जारी कर दो, हर महीने में मिलता रहेगा। सब काम जिस काम से बुड्ढा आया था अमीरुल मोमिनीन ने उनका काम कर दिया उस बुड्ढे का। उसके बाद जाने लगा। अमीरुल मोमिनीन उसके कांधे पर अपना हाथ रखते हैं और अकेले में लेके जाते हैं, अकेले में, तन्हाई में। मेरे भाइयों नसीहत अकेले में ही होती है, नसीहत
अकेले में होती है और अकेले की नसीहत ज्यादा असरदार होती है। किसी शख्स को अगर अकेले में नसीहत किया जाए तो वो नसीहत ज्यादा असरदार होती है। यहाँ तो एक वक्त की नमाज छूट जाए तो चौराहे पर, मौलवी साहब आप मगरिब की नमाज कहाँ पढ़े थे, दिखाना चाहता है कि देखो मैं मौलाना से नहीं डरता हूँ, कुछ भी पूछ लेता हूँ। जब भी कोई चार आदमियों के बीच में आपको टोके और मसले पूछे, समझो उसके अंदर रिया है, उसके अंदर मक्कारी है, दिखाना चाहता है कि मैं देखो मौलाना से कुछ भी पूछ लेता हूँ। नसीहत में होती है जो अकेले नहीं की जाए। हजरत उमर फारूक उसको अकेले में ले जाते और समझाते, बाबा ये सब छोड़ो, तवाइफे शराब ये सब छोड़ो, अब तुम बुढ़े हो गए हो, अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है, इन्नमल अमालु बिल-खवातीम, अमलों का दारोमदार आखिरी उम्र से शुरू होता है, बाबा ये सब छोड़ो। तो बुढ़ा कहता, मेरे मोमिन आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आप जब 4 साल पहले मुझे रगे हाथ आपने पकड़ा था और मैंने आपको कुरान की आयत पढ़ करके सुनाई और आप मुझे छोड़ करके चले गए, मैं उसी दिन समझ गया कि वाकई में उमर कितने अच्छे, कुरान की आयत सुनते ही उनके दिल में घर कर गई और मुझे सजा नहीं दी। मैंने उसी वक्त तौबा कर लिया और आज 4 साल हो चुके, मैंने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया, मैंने आज तक किसी रक्कासा को, किसी डांसर को अपने घर में डांस नहीं कराया, मैं सब छोड़ चुका हूँ, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता हूँ। मेरे भाइयों, पूरा वाकया बताने का मतलब ये कि नसीहत अकेले में की जाती है और उमर फारूक जासूसी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी बुढ़े की नसीहत पाने के बाद अमीरुल मोमिनीन गश्त तो रात में करते थे, लेकिन उसके बाद अगर किसी की बुराई देखते थे तो उसका नाम नोट कर लेते थे, उसके घर का नंबर नोट कर लेते थे और बाद में बुलाते थे, फिर किसी के घर में कूदने की हिम्मत नहीं की। मेरे भाइयों, तो ये जासूसी भाईचारे को खत्म कर देती है, मुआशरे को बर्बाद कर देती है, मुआशरे से इख्तिलाफ को खत्म कर देती है। अगर भाईचारे को चाहते बरकरार रहे, मुआशरे में इख्तिलाफ ना हो, तो एक दूसरे की तोड़ लगाना, एक दूसरे की जासूसी करना, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, अरे वो फला औरत उसका शोहर इंतकाल हो गया, 10 साल हो गया और एक आदमी उसके घर जाता है, इतना देर रहता है, क्या करता है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है। मुआशरे में बुराई और भाईचारे के सारी चीजें खत्म कर देती है। आपको कोई हक नहीं है किसी के बारे में बदगुमानी पालने की और किसी की जासूसी करने की, आपको कोई हक नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये दूसरी चीज जो भाईचारे को खत्म कर देती है और मुआशरे में इख्तिलाफ पैदा करती है, जासूसी और बदगुमानी। तीसरी चीज जो भाईचारे को खत्म करती है, मुआशरे में इख्तिलाफ पैदा करती है, मुआशरे में भाईचारे को खत्म करती है, तीसरी चीज क्या है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, कोई किसी के पीठ के पीछे किसी भाई की गीबत ना करे, किसी की गीबत उसके पीठ के पीछे ना करे। मेरे अंदर कोई बुराई है, फरिश्ता नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं, उस बुराई को पीठ के पीछे ले जाकर के बयान करना ये गीबत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सख्ती के साथ मना किया है और फरमाया, युहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि फकरिहतुमूह, जो शख्स गीबत करता है गोया कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, मरे हुए भाई का। तुम्हें तो देख करके घिन आएगी वो गोश्त। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, जो गीबत करता है, गीबत करना गोया अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना है। औरतें बैठी हुई है, औरतों को तो अवार्ड मिलना चाहिए गीबत में, सबसे आगे गीबत करने में। अल्लाह के नबी औरतों को खुतबा दे रहे हैं और आपने फरमाया है, औरतों तुम सदका तो खैरात ज्यादा किया करो, अरे औरतों तुम सदका तो खैरात ज्यादा किया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में तुम्हारी तादाद सबसे ज्यादा देखी है। औरतों से खिताब कर रहे हैं, औरतें खामोश नहीं है, फौरन पूछ लेती है, अल्लाह के नबी आपने जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा देखी है, तो क्यों, वजह क्या है, क्यों ज्यादा देखी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुकसिरन लान व तकफुरन आशिर, क्योंकि तुम लान तान ज्यादा करते हो, क्योंकि तुम गीबत ज्यादा करते हो, एक दूसरे की चुगली ज्यादा करती हो और अपने शोहर की नाफरमानी करती हो, इसकी वजह से मैंने जहन्नम में तुम्हारी तादाद सबसे ज्यादा देखी। तो एक आदमी था, वो कहीं से कलिंगर लेकर के आया, हिमवाना जिसको हम कहते हैं, आधा काट करके लाया, आधा भी इतना बड़ा, और उसको सफेद कपड़े में लपेट लिया और घर पे लाया, ऊपर कहीं रख दिया। बीवी की नजर पड़ी, ऐसा लग रहा था कि किसी की मुंडी काट करके लाया है। बीवी की नजर पड़ी, अरे क्या है ये? उसने कह दिया कि जो मेरा दुश्मन था ना, गाली देता था मुझे, मैंने उसका काम तमाम कर दिया है, उसकी मुंडी में काट करके ले आया हूं और अभी रात में ले जाकर के कहीं इसको फेंक दूंगा और कहीं जमीन के अंदर गाड़ दूंगा।
लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं। उसने अपनी बीवी को बता दिया और कह दिया ये बात किसी से कहना नहीं। बीवी ने कहा ठीक है। वो घर से चला गया चौराहे पर घूमने टहलने के लिए, और फिर मोहल्ले की कोई औरत इसके घर आई और बातों बातों में उसे उस औरत से बता दिया, अरे नहीं जानते हो वो फला शख्स जो था ना, मेरे शोहर को गाली देता था, आज मेरे शोहर ने उसका काम तमाम कर दिया, उसकी गर्दन काट करके ला करके घर में रखे हुए। और मेरे शोहर ने कहा था किसी से कहना नहीं, मैं तुम अपनी हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, किसी से कहना नहीं। उसने कहा अरे बहनी हम कहा जात का है कहीं से, हम कहा करे जात दोस्त का है। अब वो अपने घर पे गई और अपने घर वालों से बताई, उसने उसके घर वालों से। अभी शाम हुई नहीं, पूरे गांव में फैल गई बात, और शाम होने से पहले पुलिस ने उसके घर पे छापा मार दिया। शाम हुई नहीं, पुलिस पहले उसके घर पे छापा मार दिया। घर की तलाशी ली तो कपड़े में लपेटा हुआ कलिंगर निकला। पुलिस वाले ने पूछा क्या मामला है? उसने बताया कि मैं कलिंगर ही लेकर के आया था, मैं किसी का मर्डर नहीं किया हूं। मैं अपने बीवी को बता गया था, मैं देखना चाहता था कि कौन सी बात और तो मेरी बीवी के पेट में पचती है कि नहीं। अब मैं समझ गया हूं कि कौन सी बात बीवी को बतानी चाहिए और कौन सी बात बीवी को नहीं बतानी चाहिए। आप लोग शादीशुदा है, संभल करके अपनी बीवियों को कोई राज की बात बताना। मेरे भाइयों, तो गीबत करने से मना किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, ईमान वालों तुम गीबत अपने भाइयों की बुराइयों के पीठ के पीछे ना करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक भूखे थे, उमर फारूक भी बैठे हुए बगल में, उमर फारूक भी बैठे हुए हैं, और हज़रत अबू बकर भी। हज़रत उमर फारूक ने अबू बकर से कहा है अबू बकर भूख तुम्हें भी लगी है, भूख मुझे भी लगी है, ऐसा करो अपने गुलाम सोया हुआ है, गुलाम को जगाओ और अल्लाह के नबी के पास भेजो, हो सकता है उनके पास कुछ सालन हो, कुछ तरकारी हो, तो सब्जी वगैरह दे दे, हम लोग खा ले। तो हजरत अबू बकर ने क्या कहा, अरे तुम मेरे गुलाम की बात करते हो? मेरा गुलाम तो बहुत बड़ा कामचोर है, बहुत बड़ा सुस्त है, इसको आज भेजेगा तो कल आएगा लेकर के सब्जी और तरकारी, गोश्त, शोरबा। अरे इसको मैं क्या जगह, बहुत बड़ा कामचोर है। इतना सिर्फ कहा, अल्लाह के नबी पर वही नाज़िल हो गई और खबर दे दी गई। हज़रत उमर फारूक ने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा गुलाम कामचोर है तो किसी दूसरे को भेज करके मंगा लो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ठीक है, अपने किसी दूसरे शख्स को भेजा कटोरा लेकर के कि जाओ और अल्लाह के नबी से कुछ सालन मांग करके लेके आओ। वो शख्स गया, अल्लाह के नबी से कहता है अल्लाह के नबी अबू बकर ने मुझे भेजा है, उमर ने मुझे भेजा है, आप कुछ सालन हो तो दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा अबू बकर और उमर को सालन की क्या जरूरत है, वो लोग सालन खा चुके हैं, उनको सालन की क्या जरूरत है, वो लोग सालन खा चुके हैं। और खाली कटोरा लेकर के अबू बकर के पास आ गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने देखा खाली कटोरा वापस लेकर के आया, पूछ लेते क्यों, क्या हुआ, क्यों सालन लेकर के नहीं आए? कहा उस शख्स ने कि मैंने जब अल्लाह के नबी से कहा कि सालन मंगवाया अबू बकर ने, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उनको क्या जरूरत है सालन की, अबू बकर से जाकर के कह दो कि वो सालन खा चुके हैं। अबू बकर ने सोचा मैं तो सालन खाया नहीं और अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैं सालन खा चुका हूं। दौड़े दौड़े अल्लाह के नबी के पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक गए और कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप ये कह रहे हैं कि मैंने सालन खा लिया है। अल्लाह के नबी रब्बे काबा की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैंने सालन नहीं खाया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमने सालन खा लिया है, और कैसे खाया बताओ? जब उमर ने तुमसे कहा था कि अपने गुलाम को भेज करके सालन मंगा दो, तो तुमने क्या अपने गुलाम को कहा कि मेरा गुलाम बहुत सुस्त है, कामचोर है, आज भेजूंगा तो कल ये आएगा। तुमने उसकी बुराई की है, गोया तुमने वो सालन खाया, ये गीबत है। इतना सिर्फ था, जबकि उसके अंदर वो एक था, वो सुस्त था, वो कामचोर था, कामचोर को कामचोर पीठ के पीछे कह दिया तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ये गीबत है, तुमने सालन खा लिया है। मेरे भाइयों और कुफरा के लोगों, तुम तो गीबत करने में बहुत आगे निकल चुके हो, गीबत करने में रब्बे काबा की कसम तुम बहुत आगे निकल चुके हो। तुम इतना आगे निकल चुके हो गीबत करने में कि तुमने अपने मस्जिद के इमाम तक को भी नहीं छोड़ा है। तुमने गीबत अपने मस्जिद के इमाम तक को भी नहीं छोड़ा है। मस्जिद का इमाम भी एक इंसान होता है, फरिश्ता नहीं होता है, उसके अंदर भी कुछ कमियां होती है, कुछ बुराइयां होती है, फरिश्ता नहीं होता है। आप ये ना सोचे कि इमाम के शक्ल में, मौलवी के शक्ल में फरिश्ता नहीं आएंगे, नहीं मिलेगा। और उसकी गीबत जा करके दूसरों से बयान करना, कभी फजर की नमाज छूट जाए या और कुछ हो जाए, उसको जाकर के दूसरों से, और अफसोस की बात यह है कि गैरों से बयान किया जाता है। ये हमारे मौलवी साहब तो सोए रहते हैं। मेरे भाई ये गीबत है, बचो गीबत करने से,
वो दिन दूर नहीं है कि आप ढूंढेंगे दिन के उजाले में, दिन के उजाले में आप ढूंढेंगे मौलवी को अपने मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए, अपने मदरसे में पढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं मिलेगा कोई इमाम, नहीं मिलेगा। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि ये कयामत की निशानियों में से निशानी है कि कयामत कायम होने से पहले, कयामत आने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन को उठा लेगा, दीन को उठा लेगा। और दीन को उठाने का मतलब इसलिए दीन को उठा लेगा, उलमा को उठाएगा, एक एक करके उलमा को उठा लेगा। आप देखिए पिछले 3-4 सालों के अंदर कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पीरियड से लेकर के अब तक कितने बड़े बड़े उलमा इस दुनिया से चले गए, कितने बड़े बड़े उलमा इस दुनिया से चले गए। अफसोस की बात ये नहीं है कि इतने बड़े बड़े उलमा चले गए, बात ये है बड़े बड़े नबी और रसूल जब इस दुनिया में नहीं रहे तो ये उलमा की क्या हैसियत है, इनको भी जाना है। अफसोस की बात तो ये है कि इतने बड़े बड़े आलिम चले गए, लेकिन आज उनके जैसा कोई आलिम बन नहीं रहा, उनके जैसा कोई आलिम तैयार नहीं हो रहा है नीचे से। अफसोस की बात हुई है, क्यों? क्योंकि हमने ये कद्र मौलवियों की है, पीठ के पीछे उनकी बुराई की है। आज देख लीजिए, हर साल मदरसों से, अपने इलाके के मदरसों से हर साल 20-30 बच्चे फारिग होते हैं, आलिम बनते हैं, लेकिन कहाँ जाते हैं कोई पता नहीं, कहाँ जाते हैं पढ़ करके। लेकिन आज भी देख लीजिए, मस्जिद में इमाम की कमी, बहुत सारे मदरसों में मुदर्रिस की कमी। क्यों? क्योंकि आज हमने ये का इज्जत भी है मौलवी की, इसलिए कोई मौलवी गिरी में आ नहीं रहा, पढ़ने के बाद अपना कोई झंडा संभाल लेता है। मेरे भाइयों, गीबत करने से बचो। अगर आप क्या सोचते हैं कि मैं नमाज पढ़ने के लिए चला आया तो मैं जन्नती हो गया? अल्लाह की कसम, अगर आप जन्नत के दरवाजे तक भी पहुंच जाएंगे और आप अकेले नमाज पढ़े हैं, आप अकेले नमाज पढ़े और आप अपनी नेकियां लेकर के जन्नत के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे, आपका बेटा आएगा, आपकी बेटी आएगी, आपकी बीवी आएगी और अल्लाह से शिकायत करेगा वो बच्चा, वो बेटी, वो बीवी अल्लाह से शिकायत करेगी, अय अल्लाह ये मेरा शोहर है, अय अल्लाह ये मेरा बाप है, अय अल्लाह ये मेरा भाई है, जो खुद तो नमाज पढ़ने के लिए चला जाता था, खुद तो नमाज पढ़ता था, फजर में उठता था नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन कभी मुझे नहीं जगाया इसने नमाज पढ़ने के लिए, इसने मुझे कभी हुक्म नहीं दिया। आपकी सारी नेकियां छिन जाएंगी, आपकी सारी नेकियां छिन जाएंगी मेरे भाइयों। अच्छा, लोग फतवा भी दे रहे हैं, लोग फतवा भी दे रहे क्या? पिपरा में इतने बड़े बड़े लाओ का मुश्किल हो गए कि लोग फतवे भी ये देते हैं कि सोए हुए शख्स को नहीं जगाया जा सकता। लम्हा आपका बच्चा स्कूल ना जाए तो जगाते हो कि नहीं जगाते हो? आपका बच्चा ऑफिस में ना जाए, काम करने के लिए ना जाए तो आप जगाते हो कि नहीं जगाते हो काम करने के लिए? ये मुसलमान है जो देख के शर्माए हूं, आज ना जगाने का ऑर्डर किया जा रहा है कि नमाज के लिए, नमाज के लिए किसी को नहीं जगाया जा सकता। मेरे भाइयों, उलमा की कदर करो, उलमा की कदर करो मेरे भाइयों, और गीबत से बचो। गीबत, पीठ के पीछे किसी की बुराई ना करो, किसी की गीबत उसके पीठ के पीछे ना करो। हजरत अल्लाह के नबी के पास हजरत आयशा बैठी हुई है, हजरत आयशा बैठी हुई है, बातें कर रही है अल्लाह के नबी से कि उनकी एक दूसरी बीवी आ रही है जिनका नाम है सफिया। सफिया आ रही है और सफिया थोड़े नाटे कद की थी, थोड़े छोटे कद की थी। हमारा कहते ना, कोई बूढ़ा होता है बुढ़वा, कोई लंबू होता है लंबुया, काला होता है कलुआ, ऐसे उल्टा सीधे नाम बुलाते हैं ना। हजरत सफिया छोटे कद की है। हजरत आयशा ने जब देखा कि सफिया आ रही है तो अल्लाह के नबी से क्या कह रही है मालूम है? अल्लाह के नबी वो देखिए लटनी आवती, और लटनी आवती, छुटकी आवती, छुटकी। हजरत आयशा अल्लाह के नबी से कहते हैं, अल्लाह के नबी देखे लटनी आवती, लटनी। अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा की जबान से जब ये जुमले सुने तो गुस्सा हो गए और कहा, आयशा तुम उन्हें सफिया नहीं कह सकती थी कि सफिया आ रही है, क्या अपने नाम नहीं मालूम? अल्लाह के रसूल नाम मालूम है तो फिर क्यों नटनी कहा, फिर क्यों नटनी कहा? अल्लाह के रसूल नाटे कद की है तो नटनी कह दिया तो इसमें बुराई क्या है? नाटे कद की है, नटनी कह दिया तो बुराई क्या है? कहा यही तो बुराई है, यही तो बुराई है कि वो नाती है तो उसको नटनी उसके पीठ के पीछे कह रही हो। आयशा तुम्हें नहीं मालूम कि जो तुमने सफिया को नटनी कहा है, ये जो जुमले कितने सख्त हैं, कितने कड़वे हैं, कितने जहरीले हैं। अगर ये जुमले तुम्हारी मुंह से जो नटनी का जुमला जो निकला है, अगर ये जुमला समंदर के अंदर डाल दिया जाए तो समंदर का पानी भी जहरीला हो जाएगा, पूरा समंदर का पानी भी कड़वा हो जाएगा जो तुमने सफिया को नटनी कहा है। आप गौर करें, हम तो पूरा दिन गीबत ही करने में हमारी पूरा दिन गुजर रहा है। होटल पे गए उसकी गीबत, घर में आए उसकी गीबत,
दिनों रात हम गीबत ही करते रहते हैं, हमारा क्या अंजाम होगा? मेरे भाइयों, गीबत से बचो, और अगर गीबत से बच जाओगे तो उसकी कितनी बड़ी फजीलत मालूम है? मैंने वो वाकया बताया था, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे गालिबन जोहरी असर की, आपने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और आपने चेहरा जब मुक्तदियों की तरफ किया तो एक सहाबी को जाते हुए देखा, एक सहाबी उठे और जाने लगे। अल्लाह के नबी जब उस सहाबी को जाते हुए देखते तो क्या कहते हैं? ऐ मेरे सहाबियों, देख लो, अगर कोई दुनिया में जन्नती इंसान देखना चाहता तो देख लो, जन्नती शख्स जा रहा है, वो जन्नती शख्स जा रहा है। लोगों ने मुड़ करके देखा तो क्या देखते? तो अबू सईद खुदरी, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दूसरे दिन फिर जब अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाते और नमाज पढ़ा करके जब आप सलाम फेरते, फिर एक सहाबी उठे जाने लगे। फिर अल्लाह के नबी ने कहा, लोगों देख लो, अगर दुनिया में कोई जन्नती इंसान देखना चाहता तो देख लो, जन्नती शख्स जा रहा है। लोगों ने फिर मुड़ करके देखा तो क्या देखते? फिर अबू सईद खुदरी। तीसरे दिन फिर अल्लाह के नबी जब सलाम फेरते हैं और फिर वही सहाबी उठे और जाने लगे, तो फिर तीसरे दिन अल्लाह के नबी ने कहा, देख लो, जो दुनिया में जन्नती शख्स ना देखा हो और दुनिया में जन्नती शख्स देखना चाहता वो देख ले, तो जा रहा है। लोगों ने जब फिर मुड़ करके देखा तो क्या देखते? तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 3 दिन तक लगातार हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को फिक्र हुई, क्या बात है, कौन सा नेक अमल करते हैं कि 3 दिन तक अल्लाह के नबी बराबर कंटिन्यू 3 दिन तक अल्लाह के नबी उन्हीं को जन्नती कहा। आखिर कौन सा नेक अमल है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर 3 दिन तक अबू सईद खुदरी के घर रुकते थे और देखना चाहते कि अबू सईद खुदरी 3 दिन ये क्या अमल करते हैं घर के अंदर, जो अल्लाह के नबी ने उनको जन्नती दुनिया में बशारत दे दी। क्या 3 दिन तक हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के घर रुकते हैं और चुपके चुपके देखते हैं कि क्या, लेकिन कोई नेक अमल नहीं मिला, कोई नेक अमल। हजरत अबू सईद खुदरी घर के अंदर भी नहीं करते थे, जितना मस्जिद में नमाज पढ़ने घर पे गए और सुन्नत और तहज्जुद तक उतना सब करते थे, उतना अबू सईद खुदरी भी करते थे, और कोई नेक अमल नहीं। अबू सईद खुदरी कोई नेक अमल ज्यादा नहीं करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर पूछ लेते, अरे मेरे भाई अबू सईद, अल्लाह के नबी की ज़बान से मैंने 3 दिन तक आपको जन्नती का लफ्ज़ सुना है कि आप जन्नती हो, आप जन्नती हो, आप जन्नती हो, आप कौन सा ऐसा नेक अमल करते हो, कौन सा ऐसा अच्छा अमल करते हो? तो हजरत अबू सईद खुदरी ने कहा, कोई नेक अमल नहीं करता हूं, जितना सब करते हैं उतना मैं करता हूं, जितना सब करते हैं उतना मैं करता हूं, लेकिन एक चीज है जो मैं करता हूं वो सब नहीं करते हैं, वो ये है कि मैं ना फालतू मस्जिद में बैठता हूं, ना फालतू बाजार में रोड पे बैठता हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं और नमाज पढ़ करके फौरन घर चला आता हूं। अल्लाह की कसम, आए अब्दुल्लाह इब्न उमर मेरे भाई, मैं इतना बड़ा हो गया हूं, आज तक मैंने अपनी जबान से किसी की ग़ीबत नहीं की है, अपनी जबान से आज तक किसी की ग़ीबत नहीं की है। और यही नहीं, दूसरा जुमला सुनिए, हजरत अबू सईद खुदरी कहते, मेरे भाई मेरे कानों में आज तक किसी की ग़ीबत सुनी भी नहीं है। यही एक अमल है जो मैं करता हूं, ना मैं किसी की ग़ीबत करता हूं और ना मैं किसी की ग़ीबत सुनता हूं, इसीलिए नमाज खत्म होने फौरन अपने घर को चला आता हूं। मुझे मालूम है कि अगर सबके साथ में निकलूंगा, सलाम दुआ होगा, बातचीत होगी, उसमें किसी की ग़ीबत की जाएगी, किसी की बुराई की जाएगी, और मैं इन सारी चीजों से नफरत करता हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर अल्लाह के नबी के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैं 3 दिन तक अबू सईद खुदरी के घर रहा, देखा अबू सईद खुदरी ने कोई ज्यादा अमल नहीं करते हुए मैंने नहीं पाया, सिर्फ अबू सईद खुदरी ने यह कहा है कि मैं किसी की ग़ीबत ना तो करता हूं और ना मैं किसी की ग़ीबत सुनता हूं। यही एक अमल बताया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ यही वो अमल है, यही वो अमल है कि जिसकी वजह से मैंने 3 दिन तक उन्हें बशारत दी जन्नत की, यही वो अमल है। तो मेरे भाइयों, ये खुशखबरियां भी है, अगर हम ग़ीबत से बच जाए तो इतनी बड़ी फजीलत भी है। एक आखिरी चीजें बता करके, आखिरी हदीस बता करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। ग़ीबत करने वालों सुनो, अपने भाई की बुराई करने वालों सुनो, तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना बड़ा अज़ाब तैयार करके रखा है। अल्लाह के नबी को जब मेराज कराया गया, अल्लाह के नबी ने जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, जहन्नम में कई किस्म के अज़ाब को देखा, कई किस्म के अज़ाब को देखा। एक अज़ाब ऐसा देखा कि कुछ लोग हैं, उनके नाखून ताबे के हैं, उनके नाखून ताबे के हैं, और उस नाखून से वो अपना जिस्म नोचते हैं, अपना जिस्म नोचते हैं और अपना ही गोश्त खा रहे हैं, अपना जिस्म उस ताबे के नाखून से खींचते हैं और वही गोश्त खा रहे हैं।
अल्लाह के नबी ने पूछा, मन हाउला या जिब्रील, ये कौन लोग हैं जिब्रील जिनको ये सजा दी जा रही है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आए अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर अपने भाइयों का गोश्त खाया करते थे, यानी अपने भाइयों की गीबत किया करते थे, उनके पीठ के पीछे उनकी बुराई बयान करते थे। आज उन्हें ये सजा मिल रही है। मेरे भाइयों, बड़ी भयानक सजा है, इसलिए गीबत से बचिए, और आप गीबत से बचेंगे तो वाकई में यकीनन समाज में, मुआशरे में इख्तिलाफ नहीं होगा। भाईचारे को अगर आप कायम रखना चाहते हैं तो अपने भाई की गीबत न करें। ठीक है, बुराई है किसी के अंदर, उस पर पर्दे डालो, उस पर पर्दे डालो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुराइयों पर पर्दे डालो। अगर किसी के अंदर खूबियां देखो तो उसको फैलाओ। आज तो अच्छाइयों पर पर्दे डाल दिया जाता है, और किसी के अंदर बुराई देखा जाता है तो फिर गांव में ढिढोरा पीटा जाता है, अरे ये करते हुए मैंने फलाना को देखा। तो बुराइयों पर पर्दे डालो और नेकी को फैलाओ। किसी के अंदर कोई खूबी देखो तो उसको फैलाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते कि अल्लाह हमें गीबत जैसी बदतरीन बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए।